بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فلسطین میں زبردست مظاہرے، احتجاجیوں کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپیں، کئی زخمی۔ ایجپٹ میں ایک بار پھر عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا، چرچ پر بندوق بردار کے حملے میں 10 ہلاک۔ پوٹین نے کہا سیریا میں کامیابی رشیا کی فوجی طاقت کا ثبوت ہے، سرجی لاوروف نے امریکی سپاہیوں کی موجودگی کو غیر قانونی بتایا۔ ساؤتھ کوریا نے نارتھ کو تیل لے جانے والا جہاز ضبط کیا، خطے میں تناؤ بڑھا۔ ٹرمپ نے کہا چائنا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، نارتھ کوریا کو تیل پہنچا رہا ہے، بیجنگ نے الزام رد کر دیا۔ ہندوستان سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان کا استعمال کر رہا ہے، پاکستان نے لگایا الزام، کہا دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے۔ ممبئی میں سالگرہ کا جشن ماتم میں بدل گیا، پب میں آگ لگنے سے 15 ہلاک، مرنے والوں میں برتھ ڈے گرل بھی شامل۔ نیو یارک میں آگ لگنے کا بدترین حادثہ، 12 کی موت۔ آندھرا پردیش کے راج مندری میں نامعلوم لوگوں نے مسجد کے مؤذن کا قتل کر دیا، ٹاؤن میں زبردست کشیدگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ مغربی کنارے اور دوسرے فلسطینی علاقوں میں احتجاجیوں اور اسرائیل کے سپاہیوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئی، جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ جب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم میں سفارت خانہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، روزانہ ایسی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور جمعے کے دن ان میں تیزی آ جاتی ہے۔ مغربی کنارے کے کئی شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد زبردست ریلیاں نکالی گئیں، جن میں سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ بیت لحم، الخلیل، جریکو اور دوسرے ٹاؤن سے جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ احتجاجیوں نے اسرائیلی سپاہیوں پر پتھراؤ کیا، اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے ربر کی گولیاں چلائیں اور آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا۔ اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ غزہ سے اسرائیل کے نیگیو اور شاک علاقوں میں راکٹ داغے گئے اور کئی راکٹوں کو مار گرایا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک راکٹ حملے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی۔ عام طور پر اسرائیل ایسے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ پر بمباری کرتا ہے۔ اس دوران پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کے دھاووں اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جمعرات کو 100 سے زیادہ یہودی آباد کار اسرائیلی سپاہیوں کی نگرانی میں مسجد اقصی میں آئے اور مذہبی رسومات کی آڑ میں مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر فلسطینیوں نے احتجاج بھی کیا۔ اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں 6 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ان لوگوں کو پکڑنے کی تصدیق کی۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہبرون یا الخلیل کے بعض گھروں پر دھاوا کیا گیا، ایسا الزام لگایا گیا کہ وہاں مزاحمت کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس دوران بیت عمر ٹاؤن میں فلسطینی احتجاجیوں پر فائرنگ کی گئی، جس سے ایک شخص زخمی ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اسرائیل کے شہر این مائل میں ان کے دورے کے خلاف احتجاج کرنے پر سینکڑوں عرب اسرائیلیوں کی مذمت کی۔ یہ مسلم آبادی والا ایک شہر ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ میں نے میرے داخلے کے مقام پر احتجاجیوں کو دیکھا ہے، احتجاجی فتح تنظیم کی علامتیں لہرا رہے تھے اور میرے دورے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ احتجاج آخر کس لیے کیا جا رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نتنیاہو نے مقامی عرب لیڈرز کو اس پروگرام میں حصہ لینے کی دعوت دی تھی، لیکن مقامی لوگ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر فلسطینیوں کا جواب غیر ضروری چھیڑخانی ہے۔ یروشلم پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی سفیر ڈیوڈ فریڈمین نے کہا کہ فلسطینیوں کا جواب بدنما، جذباتی اور مخالف یہودیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے رول کے بغیر امن کا کوئی بھی عمل نہیں چل سکتا۔ ٹرمپ کے فیصلے کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ امن کے کسی بھی عمل میں امریکہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت کار لڑکی عہد تمیمی کے خلاف حملے کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔
इजिप्ट के दारुल काहिरा के करीब एक चर्च पर एक बंदूक बरदार की अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 10 लोग हलाक हो गए और बाज़ जख्मी हुए। ये वाक़या हेलवान सिटी के मरमीना चर्च में पेश आया। हमला आवर ने चर्च में दाखिल होने की कोशिश करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी, जिससे 5 सिपाही जख्मी हुए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंदूक बरदार को हलाक कर दिया। बाज़ खबरों में कहा गया कि एक दूसरा हमला आवर भी था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला इजिप्ट के मौजूदा बहरान के सिलसिले की एक कड़ी है। अब तक किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इससे पहले आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम विलायत सेनाई ने ईसाइयों को निशाना बनाया था। मई के महीने में ऐसे ही एक हमले में 29 लोग हलाक हुए थे। इसके अलावा अप्रैल में एक ईसाई त्यौहार के मौके पर चर्च में फायरिंग में 44 लोग मारे गए थे। इस ताज़ा वाक़े में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। मरने वालों में 9 ईसाई और एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर शामिल है। 5 दूसरे लोग जख्मी भी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने यह बात बताई। हमले के बाद इलाके को घेर लिया गया। वाक़े के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इमारत के बाहर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल के सिक्योरिटी ओहदेदारों की एक मीटिंग वाशिंगटन में हुई, जिसमें कई महाजों पर ईरान से मुकाबला करने के लिए मंसूबे पर गौर किया गया। इस मीटिंग में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एचआर मैकमास्टर और इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीर बेन शॉ ने हिस्सा लिया। यह मीटिंग 12 दिसंबर को व्हाइट हाउस में हुई और दोनों मुल्कों ने मिडल ईस्ट में ईरान से निमटने के लिए कई टीमें बनाने से इत्तेफाक किया। इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। दोनों मुल्कों ने इस मौके पर एक दस्तावेज पर दस्तखत भी किए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि दोनों मुल्क कम से कम 4 टीमें बनाएंगे जो अलग अलग महाजों पर ईरान के खिलाफ काम करेंगी। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करने के लिए अमेरिका एक इत्तेहाद बना रहा है। ईरान के मशहद शहर में एक शिया आलिम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। इरना न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। एक दिन पहले ईरान में कीमतों में इजाफे के खिलाफ कई लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया था। जुमेरात को इन मुजाहरों के सिलसिले में कम से कम 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईरान में ऐसे मुजाहरे बहुत कम होते हैं और आमतौर पर ऐसे मुजाहरे वो लोग करते हैं जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया या जिन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। इरना न्यूज एजेंसी ने शिया आलिम आयतुल्लाह अहमद अल मुल्हिदा के हवाले से कहा गया कि अगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां फसादियों को खुला छोड़ देंगी तो दुश्मन उनकी तस्वीरें लेगा और इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए कहेगा कि इस्लामी जमहूरिया का निज़ाम मशहद में अपनी इनकलाबी बुनियाद खो रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोस में देखा जा सकता है कि एहतजाजी सदर हसन रूहानी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कम से कम 2 शहरों में ऐसे मुजाहरे हुए। ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने कहा कि सदर के मुखालिफिन ने यह एहतजाज शुरू किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में अपनी कार्रवाइयों के लिए रशिया के सिपाहियों की तारीफ की और कहा कि वहां रशिया की मुहिम इस बात का सबूत है कि रशिया की फौजी ताकत क्या है। क्रेमलिन में खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि रशियन सिपाहियों ने एक मुजरिम ग्रुप की तबाही में अहम रोल अदा किया है, जिससे पूरी महज़िब दुनिया को खतरा पैदा हो गया था। इस तकरीब में सीरिया में लड़ने वाले सिपाहियों को अवार्ड्स पेश किए गए। पुतिन ने कहा कि आईएसआईएस सीरिया को आलमी जारहियत का अड्डा बनाना चाहती थी और इससे रशिया को भी खतरा था। पुतिन ने कहा कि सीरिया की मुहिम में 48,000 रशियन सिपाहियों ने हिस्सा लिया। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि सीरिया में अमरीकी सिपाहियों की मौजूदगी गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर सीरिया की सरजमीन को छोड़ देना चाहिए। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए सर्जी लावरोफ ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया में ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं दी है और न ही अमरीका को अरब मुल्क ने अपनी सरजमीन पर आने की दावत दी है। सर्जी लावरोफ ने अमरीका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस के एक बयान का जवाब देते हुए ये बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी सिपाही सीरिया में रहेंगे। सीरिया की सरकारी फौज ने इदलिब सूबे में पेशकदमी की है, जबकि गौता इलाके में बीमार लोगों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। सीरिया की सरकारी मीडिया में यह बात कही गई। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है तस्दीक की कि हुकूमत ने इदलिब के 51 टाउन्स और देहातों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उस इलाके में हाल तक सरकारी फौजों और जबहतुल फतह अल शाम के दरमियान लड़ाई हो रही थी। इस तंजीम का पुराना नाम अल नुसरा फ्रंट है, जो अलकायदा की सीरिया शाख समझी जाती है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पिछले 10 दिनों में सऊदी इत्तेहाद के हमलों में यमन में 109 सिविलियंस हलाक हुए। यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने कहा कि इनमें से 54 लोग एक बाजार में हमले में हलाक हुए और एक फार्म हाउस पर किए गए हमले में 14 लोगों की मौत हुई, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से था। यूएन ओहदेदार ने इस फौजी जारहियत को बेकार करार दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक कोऑर्डिनेटर जिमी मैकगोल्ड्रिक ने कहा कि इन वाकयात से यह बात साबित होती है कि यमन जंग के फरीक इंसानी जानों का एहतराम नहीं करते और ये एक बेकार जंग है, जिसके नतीजे में मुल्क तबाह हो गया है और लोगों को बेपनाह तकलीफें हो रही हैं। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के सादा सूबे में एक ताज़ा हमले में कम से कम 4 सिविलियंस को हलाक कर दिया। इन हमलों में कई लोग जख्मी भी हुए। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि सऊदी जहाज़ों ने गराब जिले को निशाना बनाया। मरने वालों में एक औरत और एक बच्चा भी शामिल है।
तुर्की की पुलिस ने अंकारा में आईएसआईएस से ताल्लुक के शुबे में 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद 120 हो गई। ये गिरफ्तारियां नए साल की तकरीबात से पहले हुई हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपकी लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीन में जबरदस्त मुजाहिरे, एहतजाजियों की इस्राएली फोर्सेस के साथ झड़पें, कई जख्मी। इजिप्ट में एक बार फिर ईसाइयों को निशाना बनाया गया। चर्च पर बंदूक बरदार के हमले में 10 हलाक। पुतिन ने कहा सीरिया में कामयाबी रशिया की फौजी ताकत का सबूत है। सर्जी लावरोव ने अमरीकी सिपाहियों की मौजूदगी को गैर कानूनी बताया। साउथ कोरिया ने नॉर्थ को तेल ले जाने वाला जहाज जब्त किया। खित्ते में तनाव बढ़ा। ट्रंप ने कहा चाइना रंगे हाथों पकड़ा गया, नॉर्थ कोरिया को तेल पहुंचा रहा है। बीजिंग ने इल्जाम रद्द कर दिया। हिंदुस्तान सीपेक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने लगाया इल्जाम, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद की कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए। मुंबई में सालगिरह का जश्न मातम में बदल गया। पब में आग लगने से 15 हलाक, मरने वालों में बर्थडे गर्ल भी शामिल। न्यूयॉर्क में आग लगने का बदतरीन हादसा, 12 की मौत। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में नामालूम लोगों ने मस्जिद के मुअज्जिन का कत्ल कर दिया। टाउन में जबरदस्त कशीदगी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को साउथ कोरिया ने कहा है कि उसने एक जहाज को जब्त किया है जिसके जरिए गैर कानूनी तौर पर नॉर्थ कोरिया को तेल ले जाया जा रहा था। जिस जहाज को जब्त किया गया उसका रजिस्ट्रेशन हांगकांग में हुआ है। बताया गया कि इस जहाज के जरिए यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए तेल पहुंचाया जा रहा था। साउथ कोरिया की वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने बताया कि यह जहाज साउथ कोरिया की एक बंदरगाह से रवाना हुआ था और उसके तेल को नॉर्थ कोरिया के एक जहाज में मुंतकिल किया गया था। साउथ कोरिया के एक ओहदेदार ने बताया कि इस जहाज को 24 नवंबर को जब्त किया गया। पता चला है कि यह जहाज और उसके क्रू मेंबर्स अभी साउथ कोरिया की हिरासत में है और उसकी तहकीकात की जा रही है। इस जहाज पर 23 चाइनीज शहरी और म्यांमार के 2 शहरी सवार थे। यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के जरिए नॉर्थ कोरिया पर ऐसे किसी भी सामान की मुंतकिली पर पाबंदी है। चाइना ने अमेरिका के इल्जामात को रद्द कर दिया है कि उसने यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों की परवाह न करते हुए नॉर्थ कोरिया की मदद की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि बीजिंग ने नॉर्थ कोरिया के एक जहाज को तेल मुंतकिल करने का मौका दिया। ट्रंप के इस इल्जाम का जवाब देते हुए चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि ये दावे हकीकत से मेल नहीं खाते। बीजिंग अपने शहरियों या अपनी कंपनियों को ऐसे किसी भी मुल्क से लेन देन की इजाजत नहीं देता जो खिलाफ वर्जियां करता है। तर्जुमान ने कहा कि चाइना ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल किया है और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो बीजिंग अपने कानून के मुताबिक इस मामले से संजीदगी से निपटेगा। ट्रंप ने जुमेरात को यह इल्जाम लगाया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमने रंगे हाथों पकड़ा है और यह जानकर हमें बहुत मायूसी हुई कि चाइना नॉर्थ कोरिया में तेल पहुंचाने की इजाजत या मौका दे रहा था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता रहा तो नॉर्थ कोरिया के मसले का दोस्ताना हल नहीं निकाला जा सकता। न्यूयॉर्क की एक इमारत में आग लगने से कम 12 लोग हलाक हो गए और 4 बुरी तरह जख्मी हुए। मरने वालों में एक दूध पीता बच्चा भी शामिल है। इस इमारत में आग ने देखते ही देखते कई फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के मेयर के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने खबर दी है कि आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसे न्यूयॉर्क में कई बरसों की बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। मेयर ने कहा कि ये लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। ओहदेदारों ने बताया कि फायर फाइटर्स ने इमारत से 12 लोगों को बचाया। मारे गए 2 लोग बाट
टब में पाए गए। न्यूयॉर्क में 25 साल के अरसे में ये आग लगने का सबसे भयानक हादसा है। मुंबई में आग लगने की वजह से एक बर्थडे पार्टी मातम में बदल गई। इस वाक़े में कम से कम 14 लोग हलाक हो गए और 21 जख्मी हुए। ये आग उस वक्त लगी जब एक पब की छत पर बर्थडे पार्टी हो रही थी। मरने वालों में ज्यादातर औरतें हैं। ये आग आधी रात के बाद लगी। बलदी ओहदेदारों ने बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात तकरीबन 12:30 बजे ये आग शुरू हुई और देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई, जिनमें 11 औरतें शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को केम हॉस्पिटल ले जाया गया। मरने वालों में वो औरत भी शामिल है जिसकी सालगिरह हो रही थी। ये वाकया मुंबई के पॉश इलाके लोअर प्रेल में पेश आया। बताया गया कि कमला मिल्स कंपाउंड में वाक़े ट्रेड हाउसिंग बिल्डिंग में 2 पब्स आग लगने से जलकर खाक हो गए। ये कमर्शियल इलाका है जहां कई टीवी चैनल्स के दफ्तर हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस फौरी मकाम पर पहुंच गए और पब से 35 जख्मियों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल में शरीक किया। पुलिस ने पब को चलाने वालों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है और उन पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम लगाया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस इमारत में टाइम्स नाउ, ET नाउ, TV9 मराठी और दूसरे चैनल्स और दफ्तर कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस सानहे पर तकलीफ का इजहार किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। आग लगने के वाक़े का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग लगने के बाद एक छत को गिरते हुए देखा जा सकता है। इस सानहे में बच जाने वाली एक गायनोकोलॉजिस्ट सुलभा अरोरा ने कहा कि आग लगते ही भगदड़ मच गई और किसी ने उन्हें धकेल दिया। सुलभा ने कहा कि लोग मेरे ऊपर से दौड़ने लगे और आग के शोलों में लिपटी हुई छत मेरे ऊपर गिरने वाली थी। उसने बताया कि वो नहीं जानती कि वो कैसे महफूज रह गई। BMC ने 5 ओहदेदारों को इस वाक़े के बाद सस्पेंड कर दिया है। पता चला कि पब का मैनेजर और स्टाफ दूसरे लोगों की मदद किए बगैर वहां से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने कहा कि वो मुलजिमीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। इस दौरान मुंबई के मेयर महादेश्वर ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया है कि वो मुंबई में हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। पता चला है कि जिस औरत की सालगिरह मनाई जा रही थी उसका नाम खुशबू मेहरा था। उसने अपनी 28वीं सालगिरह पर एक पार्टी दी थी। पता चला है कि जिस वक्त आग लगी खुशबू केक काट रही थी और देखते ही देखते आग ने पूरे कंपाउंड को अपनी लपेट में ले लिया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग लगने से कुछ देर पहले खुशबू चॉकलेट केक काट रही थी और सब लोग खुशगवार मूड में थे। खुशबू की लाश की पहचान उनके शौहर ने की। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल थे जो अमेरिका से छुट्टियां मनाने के लिए मुंबई आए थे। ये लोग अपनी आंटी को ढूंढ रहे थे कि आग की जद में आ गए। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के खिलाफ साजिशें करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन $50 बिलियन के इस अहम प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने के लिए कई चालें चल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने क्वेटा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों की मदद से इन साजिशों को नाकाम बनाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीपेक प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा। वजीर ने यह भी कहा कि अमरीका को चाहिए कि वो पाकिस्तान को धमकियां देना बंद करे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करे। चाइना ने पेशकश की है कि वो सीपेक प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक फैला सकता है। हिंदुस्तान सीपेक प्रोजेक्ट पर एतराज करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन इलाकों से होकर गुजरता है जिन पर हिंदुस्तान का दावा है। इस दौरान चाइना ने हिंदुस्तान को खबरदार किया कि वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल करे। चाइना की वजारत दिफा के तर्जुमान ने हाल ही में एक हिंदुस्तानी ड्रोन के चाइना के इलाके में दाखिल होने पर एतराज किया। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को वाशिंगटन का पार्टनर बनने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए। सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखते हुए यह बात कही। आंध्र प्रदेश के राजमंद्री शहर में नामालूम लोगों ने एक मस्जिद के मौज़िन को कत्ल कर दिया। खबरों में कहा गया कि इस मस्जिद में कुरान मजीद और जायनमाज बिखरे हुए देखे गए। इस वाक़े के बाद राजमंद्री टाउन में तनाव पैदा हो गया। खबर मिलते ही आला पुलिस ओहदेदार फौरी वहां पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। मैयत को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए एक केस दर्ज कर लिया गया। इस दौरान मकामी मुसलमानों ने इस वाक़े पर एहतजाज किया। जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने फौरी तहकीकात करते हुए मुजरिमों को पकड़ने का यकीन दिलाया। इस वाक़े की वजह से राजमंद्री की तमाम मस्जिदों और मुस्लिम इलाकों में तनाव देखा गया। बाज़ जगह एहतजाज भी किया गया और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इस दौरान पता चला है कि इस मौज़िन का ताल्लुक बिहार से है और उनकी शिनाख्त फारूक की हैसियत से की गई है। इस दौरान हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने दुनिया भर से के नुमाइंदे को बताया कि यह वाक़या फ़िरक़ेवाराना नौइयत का नहीं है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
فلسطین میں زبردست مظاہرے، احتجاجیوں کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپیں، کئی زخمی۔ ایجپٹ میں ایک بار پھر عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا، چرچ پر بندوق بردار کے حملے میں 10 ہلاک۔ پوٹین نے کہا سیریا میں کامیابی رشیا کی فوجی طاقت کا ثبوت ہے، سرجی لاوروف نے امریکی سپاہیوں کی موجودگی کو غیر قانونی بتایا۔ ساؤتھ کوریا نے نارتھ کو تیل لے جانے والا جہاز ضبط کیا، خطے میں تناؤ بڑھا۔ ٹرمپ نے کہا چائنا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، نارتھ کوریا کو تیل پہنچا رہا ہے، بیجنگ نے الزام رد کر دیا۔ ہندوستان سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان کا استعمال کر رہا ہے، پاکستان نے لگایا الزام، کہا دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے۔ ممبئی میں سالگرہ کا جشن ماتم میں بدل گیا، پب میں آگ لگنے سے 15 ہلاک، مرنے والوں میں برتھ ڈے گرل بھی شامل۔ نیو یارک میں آگ لگنے کا بدترین حادثہ، 12 کی موت۔ آندھرا پردیش کے راجمندری میں نامعلوم لوگوں نے مسجد کے مؤذن کا قتل کر دیا، ٹاؤن میں زبردست کشیدگی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔